फ्रेंड्स, वेलकम टू पेकनोरी कैपिटल सागा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बाटा इंडिया लिमिटेड की। तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1914 के आसपास चल रहा है। प्राइस टारगेट जो हमारा रहेगा 2370 के आसपास। एंड कंपनी डिस्क्रिप्शन इज बाटा इज द लार्जेस्ट रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर इन इंडिया। द कंपनी हैज़ ए रिटेल नेटवर्क ऑफ ओवर 1600 प्लस स्टोर्स इंक्लूडिंग 234 franchise store which sell total of 47 million pairs of footwear annually. The retail channel contributes 82% to the company's total revenue, whereas the balance 18% is contributed by multi-brand outlets and the e-commerce channel. Bata currently has a 15% value market share in the organized footwear market. And key investment arguments are: be maintained buy on stock with an unchanged price target of rupees 2370. Bata trades at 52.5 times oblique 45 times its financial year 23E to financial year 24E EPS and 22.8 times oblique 19.6 times its financial year 2023E oblique financial year 2024E EV EVI DTA. Bata is eyeing growth through its strategic levers of maintaining a relevant product portfolio, expanding its network, becoming an aspirational brand for youth, increasing digital footprint, creating an efficient supply chain, and curbing costs. Casual's portfolio fetched 30% of pre-COVID revenue. Shares has risen to 40% now. Bata aims to build a portfolio with focus on casualization. Bata had 270 franchisee stores in mid-November. It plans to add over 150 more, taking store count to over 500 in 2 to 3 years. And the next share is Kaplan Point Laboratories Limited. कैपलिन को आप जो करंट मार्केट प्राइस का जो नियर बाई चल रहा है वो 811 के आसपास है और शॉर्ट टर्म टारगेट इसका रहेगा 1054। यानी कि हम जो अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं, यानी कि हम लोग जो टारगेट हमारा है वो करीब करीब 30% के आसपास है। हम 30% प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ऑन ए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ, करेक्शन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी एंड कंपनी डिस्क्रिप्शन इज कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज was established in 1919 to manufacture a range of ointments, creams and other external applications, and till date has transformed itself to be a generic formulations player with a differentiated geographical presence. CLPL is focused on the emerging market of LATAM, Central and South America, Francophone and some parts of Africa, so as to be able to encash on the early mover advantage in these largely untapped markets. CLPL is primarily a generic formulations company with a presence across wide range of therapies and derives 100% of its revenues from the exports markets. And key investment arguments are: Kaplan Point Laboratories Limited expects to be relatively less affected by supply side issues in China and the new COVID-19 variant. Plans to tap the larger markets of Brazil and Mexico in LATAM, increasing penetration in existing markets and an established strong presence are the key drivers for LATAM markets. In the US, a healthy product pipeline in the injectable and receipt of the first ophthalmic product approval coupled with plans to establish front end by financial year 2023 are key drivers. Over the long term, CLPL could evaluate potential value unlocking opportunity for US business. Basis the above triggers, CLPL looks to double its LATAM revenues and aims for a $100 million sales from the US over the next 5 to 6 years. We reiterate positive view on CLPL and expect a 30% upside potential. अब हम चलते हैं ब्रोकरेज रडार पे। इस समय तो SBI कार्ड्स है जो ब्रोकर रडार पे है। तो बेसिकली मेंटेन आउट परफॉर्म टारगेट एट ₹1350 पर शेयर। जो SBI कार्ड का इस समय जो टारगेट है वो इस समय 1350 के आसपास रहेगा। SBI कार्ड्स October 2021 spends were on 45% YOY and 30% MOM. See continued pickup in spends growth, credit cost to moderate and ROs to improve to 7% in H2 2020.
CLs on G maintained by target at rupees 415 per share, rising ad spend potential merger with Sony, a rating catalyst. See strong advertising upcycle ahead, explode OTT growth and for G5, हाईली फेवरेबल रिस्क रिवार्ड। तो इसका जो टारगेट है जो जी का वो 415 के आसपास रहेगा। अब हम करते हैं बात मारुति सुजुकी की। तो डाउनग्रेड टू अंडर परफॉर्म टारगेट एट ₹6,420 per share, losing market share in the highly profitable SUV segment. Downgrades like on volume and margins for financial 2023 to 24. Margin recovery on the cards but could be below consensus. अब आते हैं हम लोग आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड रहेगा। आज का जो ये है अपना निफ्टी की जो सपोर्ट है वो 17,000 के आसपास रहेगी, और जो इसका रेसिस्टेंस है अगर मार्केट नीचे चले जाती है तो फिर 17,600 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है कुछ दिनों के लिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,300 का सपोर्ट रहेगी और 36,800 का रेसिस्टेंस अगर मार्केट ऊपर चले जाती है तो। अब मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करें तो निफ्टी का है वो 16,600 और जो रेजिस्टेंस रहेगी वो 18,600 के आसपास। और बैंक निफ्टी की बात करें 35,000 के आसपास है सपोर्ट है हमारी, और 41,830 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगी। और आज की अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी की पहली सपोर्ट है अगर मार्केट नीचे जाती है तो 17,269 के आसपास, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके नीचे चले जाती है तो 17,149 के आसपास, और हमारे थर्ड जो सपोर्ट रहेगी 17,064। इस तरह से रेजिस्टेंस अगर मार्केट ऊपर चले जाती है तो हमारी पहली जो रेजिस्टेंस रहेगी 17,512 के आसपास, दूसरी 17,600 के आसपास, तीसरी 17,657 के आसपास। इस तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आपकी जो सपोर्ट रहेगी वो 36,246 के आसपास, और अगर मार्केट और नीचे चले जाती है 36 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसकी अगर और चली जाती है तो हम लोग फाइनली ये मान सकते हैं कि 35,805 के आसपास सपोर्ट हमारी रहेगी। इस तरह से अगर रेजिस्टेंस की बात करें, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पहली जो रेजिस्टेंस रहेगी 36,774 के आसपास, उस तरह से अगर मार्केट ब्रेक करके और ऊपर चले जाती है तो 37,000 के आसपास। अगर मार्केट फिर उसको भी ब्रेक कर देती है तो ये मान के जा सकते हैं कि 37,290 के आसपास ये टच कर सकती है। तो ये था आज का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो आप एक व्यू बनाइए, ये एग्जैक्ट तो नहीं होता लेकिन ये क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे है, लेकिन फिर भी आप एक व्यूज़ बनाइए। बाकी मैं जो भी जिन भी शेयर्स में आपके साथ बात करता हूँ वो बेसिकली उनको खरीदने के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है, कोई फंडामेंटली कोई कारण होते हैं कि हम लोग किन शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करें। आप कभी भी किसी भी शेयर में बिना सोचे समझे या किसी के कहने पे इन्वेस्ट ना करें, पहले उसके बारे में रीजन जानें। जो भी आपको बोलता है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, पहले उससे पहले आप रीजन पूछिए कि मैं स्टॉक को क्यों खरीदूँ, उसके पीछे रीजन्स क्या हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके की डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, तो ये सब चीज़ें आप पूछिए उससे। तो इस तरह से मैं आपको डेली आपको अपडेट करता रहूँगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल के बता सकते हैं, मैं आपका उसका जवाब दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन बटन, ताकि मैं आपको जो भी डेली अपडेट्स, जो भी आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि 10 बजे से पहले 10 से 11 के बीच में, लेकिन 10 बजे से पहले कि आपको ये डेली मैं अपडेट करता रहूँ मार्केट आवर्स, जब मार्केट खुलती है। सैटरडे संडे तो नहीं, सैटरडे संडे में शायद आपको ट्रेनिंग की वीडियो या इस तरह कुछ डालूंगा आपको। तो यही था सर, थैंक यू।